Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 10th lecture on the course Organizational Behavior. Let's have a quick recap of lecture 9 and then we start with the contents of the 10th lecture. So during the lecture 9 we were discussing the different ways to motivate the employees. Right, we already discussed, so that was basically a concluding lecture on the core on the motivation topic, wherein we discussed all the different motivation theories, and then we discussed that how the organizations have how they use different interventions to keep the employees motivated, right? So the motivation through the motivation theories, and in the earlier sections we discussed the importance of motivation. We also discussed the different outcomes of motivation, and then during our these lectures we discussed that how the management has different options, or how the different organizations that use different ways to keep the employees motivated. Sometimes they do it by redesigning the jobs. Sometimes they do it by offering the flexible times, and sometimes they do it through in those involvement programs. Sometimes they do it through the variable pays, etc. So during our last lecture we discussed that employee involvement program is one such option that through which the employees are kept motivated. Because the involvement of the employees in the organizational decisions, in the managerial decisions, that really boosts up the spirits of the employees. They feel that they're a part of the organization, and as a result what happens is that they feel themselves more motivated, and they own they have a more feeling of ownership with the organization, and with their work or with the goals or anything that they have been assigned. So in the employee we discussed that the different types of employee involvement programs that different organizations they can offer, such as the participative management. We discussed the representative management, and we also discussed the quality circles, and we also saw that how most of these options are mostly simply abandoned by the organization, by the management, because what is happening is that just as you see in the representative management, the representatives, those employees who are representing the workers at the shop floor in the board meetings, they are actually representing their own self-interests, and actually they are hardly their interests are translated into the wishes of the employees at the lower level, or what they want, what they desire. Similarly, for the quality circles, we also discussed that how this is also criticized, because the employees meet up with the manager or the supervisor only for a very limited amount of time, and due to that constraint, what happens is that if they're meeting just for 1 hour in 1 week, then that's not a sufficient period of time for the employees to solve the problems, or to get up with come up with their alternatives, and make bring up solutions. And for their involvement, for their personal involvement, this is such a less amount of time. That is why it also remains a bandwagon in the hands of the management, and actually the employees are not involved in the process. Then we also discussed that how the employee involvement programs, they're linked with the motivation theories. So इनके ऊपर हमने बात की थी, और आपको how these different involvement programs are linked to the motivation theories, and what are the implications of all those different motivation theories, कैसे उनका redesign के साथ how these motivation theories are linked. We discussed these points in here, or which should be very much clear to you कि कौन सी motivation theory जो है that provides a good explanation of the different employee involvement programs. Then we also discussed that how the organizations, they use different reward structures to motivate the employees, different types of rewards, different forms of rewards, how they're used by the organization to keep the employees motivated. तो इसमें मैंने आपको ये I had told you that how जो employees की motivation है उसमें we discussed अपनी theories में, जैसे हमने cognitive evaluation theory में भी ये discuss किया, फिर हर्सबर्ग में भी it was clear कि
जो मोटिवेशन है, इट इज़ नॉट अ यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट बट इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, जिसमें आपकी या बाई डायमेंशनल आप कह लें, जिसमें आपकी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो आ जाती है। एंड वी डिस्कस्ड कि कैसे जो दोनों मोटिवेशंस हैं उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं एंड बोथ हैव द डिफरेंट फ्लरिशिंग फैक्टर्स, दोनों के डिफरेंट है। तो ऑफ कोर्स जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बिकॉज दैट इज कॉज्ड बाय द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, देयरफॉर वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को आप इन्हांस भी थ्रू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर इफ आई एम एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटिंग और मोटिवेटेड, दैट इज इफ आई एम मोटिवेटेड, मतलब इफ कोई टास्क है उसको परफॉर्म करना है, ठीक है, और अगर मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगी तो मुझे उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद क्या आउटकम्स या मटेरियल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आई वॉन्ट बी कंसर्न्ड विद दैट। फॉर मी इट विल बी एन अकॉम्प्लिशमेंट दैट आई हैव सक्सेसफुली परफॉर्म दैट टास्क। ठीक है, वो हो सकता है मेरे लिए मेरी अपनी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या मेरी अपनी जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी सक्सेस, अपनी सब्जेक्टिव सक्सेस के लिए आई माइट हैव डन, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन के लिए आई माइट हैव डन दैट, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो लिंक्ड भी हो किसी एक्सट्रिंसिक जो बेनिफिट है उसके साथ। ठीक है, तो ये तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन ओरिएंटेशन है अगर मेरी, देन इट विल हैपन। बट इफ आई डोंट हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन ओरिएंटेशन, देन व्हाट विल हैपन इज दैट आपका जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं आप उनको चाहेंगे, मतलब आपको किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यू वॉन्ट बी परफॉर्मिंग दैट टास्क अनलेस एंड अनटिल इट इज टाइड विद सम एक्सट्रिंसिक बेनिफिट्स और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स और एक्सट्रिंसिक आउटकम्स। इन द फेस ऑफ आउटकम्स जो है वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और नॉन टेंजिबल भी हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो टेंजिबल एक्सट्रिंसिक आउटकम्स हैं उनमें सैलरी, प्रमोशंस, आपका जो पे इंक्रीसेस हैं, इंक्रीमेंट्स हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो नॉन टेंजिबल आपका रिवॉर्ड्स हैं उनमें क्या जाता है, रिकग्निशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो रिकग्निशन है वो आपकी एक नॉन टेंजिबल आउटकम है, बट दैट इज ऑल्सो एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, बट दैट इज अ नॉन टेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स का हमने ये देखा था कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स इतना अंडरमाइन नहीं करते इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, बट एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स डू। अच्छा, फिर तो ये देखें कि ये इस तरह से डिफरेंट जो मोटिवेशनल ओरिएंटेशंस हैं वो कैसे इंडिविजुअल को की जो डिफरेंसेस हैं वो हाउ दे ब्रिंग अप दोज जो इंसेंटिव सिस्टम्स जो हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट मोटिवेशनल ओरिएंटेशंस। अब अगर आप एक ही रिवॉर्ड रख दें और जो दो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब अगर ये रख दिया जाए कि जी आपको यू विल बी गिवन कैश अवार्ड, ठीक है, तो वो आपको दैट फॉर द एम्प्लॉय हु इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटिंग और मोटिवेटेड, उसके लिए तो दैट विल बी दैट माइट बी अ गुड मोटिवेशन टू वर्क फॉर। बट फॉर एन एम्प्लॉय हु इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, उसको इट डजंट रिक्वायर कैश, उसने कैश को क्या करना है, इट डजंट नीड दैट कैश रिवॉर्ड। ठीक है, वो तो अपने इंट्रिंसिक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, तो फिर उसके लिए वो कैश रिवॉर्ड विल नॉट बी इम्पॉर्टेंट और मटीरियल। तो द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको और द एंड मैनेजर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, हाउ दे हैव द डिफरेंट मोटिवेशनल ओरिएंटेशंस एंड हाउ यू कैन नॉट ट्रीट एवरीबडी विद द सेम स्टिक। ठीक है, और आप जो है वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है वो यू कैन नॉट अडॉप्ट इट लाइक दैट। ठीक है, यू हैव टू सी कि आपका कौन से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी ओरिएंटेशंस कौन सी हैं, एंड एज पर दैट यू नीड टू एक्ट। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा था कि जो रिवॉर्ड्स हैं ये तो ओके, दे आर लिंक्ड टू द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। देन व्हाट हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन के हैंड्स में क्या है कि जब आपने रिवॉर्ड करना है एम्प्लॉयज़ को, तो हाउ यू हैव टू रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज़, आपने पे स्ट्रक्चर्स को कैसे इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से शुरू किया था। देन वी ऑल्सो डिस्कस द जो वेरिएबल या फ्लेक्सिबल पे प्लान्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया इन रिलेशन टू दिस। तो हमने ये देखा कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सबसे पहले तो अपना जो एनालिसिस है, देखें जैसे हमने स्वॉट एनालिसिस वगैरह आपने डिस्कस किया था। ठीक है, आगे जाके हम फर्दर अपनी स्ट्रेटजी वगैरह और इस तरह के लेक्चर्स में फर्दर डिटेल्स में इनकी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये एनालिसिस बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि आपका जो यू नो दे शुड बी यूज्ड, आपका जो स्ट्रेटजी बिल्डिंग होती है वहाँ से ये you start doing these analysis, but they are the ongoing analysis because they are basically referring to the environmental scan. उस environmental scan की बात है जो
आपको कॉन्स्टेंटली करनी है व्हेन यू हैव इफ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस नेचर ऑफ जो कैरियर्स हैं या नेचर ऑफ जो वर्ल्ड है या जो कंपनीज को चैलेंजेस हैं, इनमें अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो दे हैव टू कम अप विद दीज. देन वी डिस्कस्ड के कैसे जो पे स्ट्रक्चर्स इस्टेब्लिश होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ दे डू दैट यूजिंग दिस स्वॉट एनालिसिस, जो स्कैन एनालिसिस है जिसको किए बगैर आपका गुजारा नहीं है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. यू हैव टू डू इट. और इसमें फिर आप ये देखते हैं कि कैसे जो एक्सटर्नल मार्केट है वो कैसी पेयर है, एंड फिर आप इंटरनल मार्केट में अपनी जो जॉब इवेल्युएशन है, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन वगैरह देख के यू इवेल्युएट दैट जॉब इंटरनली एंड देन आल्सो सी के एक्सटर्नली कैसे पेमेंट्स हैं, एंड देन यू अराइव एट अ पे स्ट्रक्चर. Then we saw that how to pay, that rewarding employees through variable pay programs. ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वेरिएबल पे प्रोग्राम्स एज अ रिजल्ट ऑफ, मैंने आपको मेरा ख्याल है पहले भी बताया था और आगे भी हम काफ़ी जगह पे जाके जहाँ जहाँ रेलिवेंस आएगी ये डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रेशर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इन द मॉडर्न डे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दोज प्रेशर्स द ऑर्गेनाइजेशंस दे नीड टू बी फ्लेक्सिबल, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या करती हैं कि अब ये वेरिएबल पे प्लान पे इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस शिफ्ट हो रही हैं. So when they're shifting to these variable pay plans, what happens is that they basically are, you know, when they're shifting to these variable pay plans, they are actually giving themselves more room and more flexibility for to reduce the variable costs. मतलब वो कॉस्ट जो वो कम कर फिक्स कॉस्ट जो, बिकॉज यू नो कि हमने डिस्कस किया था कि सैलरी का एक इम्पॉर्टेंट हेड होता है और सबसे बड़ा हेड होता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेरिएबल पे प्लान्स वो अपने सैलरी के हेड को रिड्यूस कर सकती हैं, बिकॉज वो लिंक कर देंगी एम्प्लॉई आउटकम्स या आउटपुट के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ उनकी पे को, कि जितनी आपने प्रोडक्टिविटी, जब तो फिर सीजनल जब ट्रफ्स आते हैं तो उनमें जब आपकी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, एम्प्लॉइज़ की जब प्रोडक्टिविटी व्हेन इट फॉल्स, तो एज अ रिजल्ट उनकी जो पे लेवल्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बिकॉज दे आर लिंक्ड टू द प्रोडक्टिविटी और द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो इस तरह से हमने पीस रेट पे देखा कि जिसमें आपकी कोई जो है वो फिक्स्ड पे कोई भी नहीं होती है, राइट, एंड कोई देयर इज नो बेस पे, एंड यू जस्ट हैव टू प्रोड्यूस गेट व्हाट यू हैव प्रोड्यूस्ड. उतने ही नंबर से यूनिट्स जितने आपने प्रोड्यूस किए होंगे उतनी ही आपको उस पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे. ठीक है, तो एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि हाउ दिस टाइप ऑफ पे प्लान जो है वो आप हर किसी को तो ऑफर नहीं कर सकते, जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं या टेक्निकल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनको यू कैन नॉट ऑफर दिस काइंड ऑफ बेनिफिट्स टू देम. उसके बाद हमने फिर मेरिट बेस्ड पे को भी डिस्कस किया और हमने देखा कि कैसे मेरिट बेस्ड पे के हमने चैलेंजेस देखे. हमने देखा कि हाउ यू नो आपका जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन वगैरह का सिस्टम है, हाउ दैट नीड्स टू बी यू नो एक्यूरेट, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर दिस मेरिट बेस्ड पे, कि उसमें अनफेयरली इसको परसीव करें एम्प्लॉइज़, बिकॉज अदरवाइज अगर वो फेयरली अनफेयरली परसीव करेंगे तो फिर हम आगे जाके देखेंगे कि हाउ फेयरनेस और जस्टिस जो है वो कैसे एम्प्लॉई आउटकम्स को कितना हाउ यू नो बिग चैलेंज इट इज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू गिव दीज परसेप्शंस ऑफ फेयरनेस टू देयर employees, because unless and until they have the fairness perceptions, you know, they are not going to, it will be difficult for the organization, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव आउटकम्स आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ सकते हैं. तो इस तरह की हमने चीज़ें इसमें डिस्कस की थी. फिर आगे हम फेयरनेस और जस्टिस को मैंने जैसे बताया कि आगे भी जाके देखेंगे और इन चीज़ों की डिटेल्स देखेंगे किस तरह के आउटकम्स ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं. उसके अलावा फिर हमने नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस देखी, जैसे स्किल बेस्ड पे देखी, जिसमें ये था कि आपने अपने यू नो एम्प्लॉइज़ को इंसेंटिव दिया जाता है कि अपने स्किल्स को इन्हांस करें एंड बेसिंग ऑन देयर स्किल्स दे विल बी पेड. इसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखे, प्रॉफिट शेयरिंग गेन शेयरिंग प्लान्स देखे, स्टॉक ओनरशिप प्लान्स देखा एम्प्लॉई का, विच इज़ अगेन यू नो एंड एक किस्म की एक पैकेज है, ये एक फैसिलिटी है एम्प्लॉइज़ को जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं कि वो आपकी जो एट वेरी वेरी लो प्राइस, लोअर मच लोअर देन दैट ऑफ देन द मार्केट प्राइस, आपको एक शेयर्स जो हैं वो अपनी कंपनी ऑफर करती है, राइट. तो फिर और इसके अलावा हमने फिर इन सारी थेरीज की, इन टॉपिक्स की इम्प्लिकेशंस डिस्कस की फॉर द मैनेजर्स, कि कैसे ये थेरीज जो हैं ये आपको व्हाट यू हैव टू बेनिफिट फ्रॉम दीज थेरीज, मोटिवेशन से कैसे आपने बेनिफिट करना है, इन थेरीज से कैसे बेनिफिट करना है, और फिर एज अ रिजल्ट आपको जो आउटकम्स हैं वो व्हाट आर द आउटकम्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस.
तो इस तरह से हमने इंक्लूड किया अपने मोटिवेशन वाले लेक्चर्स को, और दिस लेड अस टू द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो हम आज देखने जा रहे हैं चेंज मैनेजमेंट को। अच्छा देखें, इसमें बेसिकली तो अभी हमने सो फार हमने क्या किया है कि हमने एक किस्म का, आप ये समझ लें कि हमने काइंड ऑफ जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं वो फिनिश कर लिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हमने देखे थे। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्रुप एंड द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, जो हायर लेवल के फैक्टर्स थे, अब हम उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप जो है वो और बेसिकली आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी शायद एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको, इट्स नॉट नेसेसरी कोई इतना हार्ड रूल नहीं है कि आप के जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं उनमें इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस नहीं आएंगे। दैट्स नॉट द केस। ठीक है, आपके जो फैक्टर्स हैं दे कैन बी म्यूचुअली ऑफ कोर्स, जब हम पर्सनैलिटी या इंडिविजुअल मोटिवेशन वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम इंडिविजुअल मोटिवेशन की ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें वर्क एनवायरनमेंट भी होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, उसका कल्चर, ठीक है, द पीपल अराउंड देयर, द सुपरवाइजर, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर इनटू प्ले which are in the hands of the management and the organization, which are directly linked to and affecting the employees motivation, but still हम उसको individual level के ऊपर, क्योंकि motivation itself एक individual level का phenomenon है, इसलिए हम उसको उसमें यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, या जिन फैक्टर्स को हमने इंडिविजुअल में कंसिडर किया उनको इन बेसिस पे किया। इट्स नॉट कि वो एक स्टैंड अलोन उसमें तो काम नहीं कर रहे फैक्टर्स। ऑफ कोर्स दे आर ऑल मतलब एक दे आर ऑल इंटरलिंक्ड है ना, सारी चीज़ें इंटरमिंगल्ड हैं, वी कैन नॉट सेपरेट देम फ्रॉम वन एंड अदर, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसकी लॉजिकल जो आर्गूमेंट है या थ्योरेटिकल आर्गूमेंट है, आई एम टेलिंग यू दैट। अच्छा, इसके बाद आज जो है मैंने जैसे आपको बताया कि हम चेंज को देखेंगे, आज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को। इसमें हमारे जो है देयर आर नंबर ऑफ आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स दैट वी हैव फॉर टुडे, और द गोल्स दैट वी हैव टू टुडे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए आफ्टर डूइंग दीज लेक्चर्स ऑन चेंज। तो चेंज के ऊपर जो लेक्चर है, आई विल ट्राई कि मैं इसको आज फिनिश करूं। अगर हमारे, लेकिन चूंकि एजेंडा इज़ क्वाइट हैवी, तो इसलिए आई विल हैव टू सी कि अगर हमारे पास इतनी स्पेस है कि हम इसको आज कर सकें, अदरवाइज विल हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेक्चर 11 भी, अदरवाइज भी हम इसमें करेंगे, और उसके साथ कोई और एक ऐसा टॉपिक कंबाइन कर लेंगे जिसमें हमारा वो भी फिनिश हो जाए। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स आई लेट यू नो कि जो द थिंग्स दैट आर लेफ्ट, इफ दे आर लेफ्ट आउट, वेदर वी हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड एट द एंड ऑफ द लेक्चर, हम उसको देख लेंगे। अच्छा, अभी आप देखें कि हमने आज के दिन में प्लान किया हुआ है, फोर्सेस फॉर चेंज प्लान किया हुआ है। उसके बाद विल बी डिस्कसिंग द प्लान वर्सेस अनप्लान्ड चेंज। ठीक है, तो प्लान चेंज क्या होती है, अनप्लान्ड क्या होती है, क्या इनकी इम्प्लीकेशंस हैं, इनको देखेंगे। रेजिस्टेंस टू चेंज देखेंगे, देन वील सी ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, कैन यू ओवरकम द रेजिस्टेंस टू चेंज, एंड इफ so how and why. Then we'll be seeing approaches to the change. We'll be discussing the Lewin's 3 steps जो चेंज मॉडल है वो हम एक देखेंगे। दूसरा क्वार्टर्स 8 स्टेप प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंज देखेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को देखेंगे, एंड क्रिएटिंग कल्चर फॉर चेंज सच एज द लर्निंग एंड इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैन क्रिएट द चेंज कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा एजेंडा है आज के लिए। Let's start with the first topic of the agenda, which is the forces of change या forces for change। अच्छा, change जो है वो यानी कि what are the forces that are driving change, ये हमारा यहाँ पे मतलब है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज एक्चुअली ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में या ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में। ठीक है, तो इसके लिए आपको आप ये देखें कि हमने मैंने आपको वही बताया कि चीज़ें जो हैं, जो टॉपिक है, सिंस वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं ऑफ कोर्स दे आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट इज दे आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द स्टडी ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। तो फिर उसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो फिर उसमें क्या है कि जो सारे टॉपिक्स हैं दे आर बेसिकली इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं, और आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको विच आर फिटिंग इन एट एवरी कॉन्टेक्स्ट में, या काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट में वो फिट इन हो रही होती हैं। तो वी हैव टू वो ऑलरेडी आपको करवाई भी जा चुकी होती हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो चेंज एलिमेंट्स हैं या चेंज एजेंट्स हैं, ये प्रॉब्ली आप यकीनन आगे जाके काफ़ी जगह के ऊपर मुझे दोबारा बतानी पड़ेंगी चीज़ें डिफरेंट टॉपिक्स के उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये है कि इट इज़ पॉसिबल कि आपको जो है वो मैं ऑलरेडी बता दी हूँ, बट इट्स नॉट इन माई मेमोरी कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बताई हैं, डिस्कस हमने की हैं या नहीं की। अच्छा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वर्क फोर्स जो कि चेंज ला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें तो एक आगे कि वर्क फोर्स की नेचर चेंज हो रही है, एंड यू ऑल आर फेमिलियर कि कैसे हम आगे जाके अपना डाइवर्सिटी का चैप्टर भी पढ़ेंगे, हम आगे जाके इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी पढ़ेंगे, हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें इंक्रीजिंगली इंटरनेशनल हायरिंग्स हो रही हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दोज वही मल्टीपल फिनोमिनन जो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे क्या है कि जो कैरियर्स हैं वो दे हैव बिकम मोर बाउंड्रीलेस, ऑर्गेनाइजेशंस बाउंड्रीलेस हो गई हैं, जिसका मतलब ये है कि देयर आर नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ एनी सॉर्ट। ना तो कैरियर्स के ऊपर कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री है और ना ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कोई बाउंड्री है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट दे आर ऑल मोबाइल, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं, दे आर टोटली मोबाइल नाउ, और वो क्या है कि वो दे कैन इजीली जो आपकी जॉब पोस्टिंग्स हैं वो बहुत इंटरनेशनल नेचर की हो गई हैं। देखिए आप अपने जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें अब इंटरनेशनल जो जॉब्स हैं, वैकेंसीज हैं, ओपनिंग्स हैं, उनके एड्स आ रहे होते हैं। सिमिलरली ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीजिंगली अब अपने जॉब्स को पोस्ट कर देती हैं, एंड एज अ रिजल्ट जो हायरिंग है मोस्टली वो क्या है थ्रू ऑनलाइन हो रही है। यू जस्ट हैव टू आप अपना CV भेज दें एम्प्लॉयर को, आप यहाँ उनका जो ऑन वेबसाइट पे जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें एंड सेंड इट टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, राइट, एंड दैट्स इट। व्हिचएवर पार्ट इन द वर्ल्ड यू आर, आपकी 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर एप्लीकेशन जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। एंड यू आर कंसिडर्ड, यू बिकम अ पार्ट ऑफ द लेबर पूल दैट इज टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, ठीक है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट नाउ डेज। तो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट मोबिलिटी ऑफ लेबर हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, ठीक है। लेबर की मोबिलिटी ऑफ कोर्स उससे इंक्रीज कर गई है, एंड उसकी क्या रिपरकशंस हैं कि एज अ रिजल्ट ये हुआ है कि आपकी डाइवर्सिटी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स आपको नजर आती है। दूसरा ये कि पॉपुलेशन इज एजिंग कॉन्स्टेंटली, यू कैन सी के ग्रेइंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, रिटायरमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन न्यू एंट्रेंट्स जो हैं दे डोंट हैव द एडिक्वेट स्किल्स। एज अ रिजल्ट देयर इज अ स्किल गैप, एक स्किल गैप भी नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ the older workers, the aging of the older workers and the newcomers that are coming up with the inadequate skills. तो ये क्या है कि आपकी वर्कफोर्स जो उसकी नेचर ऑफ वर्कफोर्स हैज चेंज्ड, एंड एज अ रिजल्ट दिस इज अ फोर्स फॉर चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब वाई? बिकॉज जब वर्कफोर्स की नेचर, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई तो ऑफकोर्स उसके इन्फ्लुएंसेस तो होंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि एम्प्लॉयज जो हैं वो उनको फिर व्हाट्स हैपनिंग इज दैट कि वो जो एम्प्लॉयज हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज उनके लिए डिमांड जो है उन एम्प्लॉयज के लिए वो भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ अ चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मल्टी डाइवर्सिटी एंड डाइवर्स जो वर्कफोर्स है उसके नतीजे में जो चैलेंजेस उसको फेस आ सकते हैं, सच एज डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। एम्प्लॉयज की स्किल्स वगैरह को, हाउ यू हैव टू अपडेट देयर स्किल्स, हाउ यू हैव टू इम्प्रूव ऑन देयर स्किल्स, उस चैलेंज को उसको कैसे मेंटेन रखना है उनकी स्किल्स को, सो दैट दे आर नॉट ऑब्सोलीट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दे आर ऑल चैलेंजेस फॉर द मैनेजमेंट एंड दे आर द फोर्सेज ऑफ चेंज बेसिकली। उसके बाद हम देखें कि टेक्नोलॉजी जो है अगेन द टेक्नोलॉजी नाउ इज मच फास्टर, इट्स चीपर एंड मोर मोबाइल कंप्यूटर्स जो हैं वो आपको देखने में मिलते हैं, ऑनलाइन जैसे म्यूजिक शेयरिंग है, ठीक है। उसके बाद डिसाइफरिंग ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक कोड। तो ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी जो इतनी चीप हो रही है, फास्ट हो रही है, फास्टली ग्रोइंग है, ठीक है। एवरीवेयर ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर। जो ओल्डर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स थे वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मैनुअल वेज जो है वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वहाँ पे अब इस तरह से काम नहीं होता। तो इन सार ये अगेन इट इज सो टेक्नोलॉजी इज एन अदर बिग फोर्स फॉर चेंज। Then there are economic shocks. There are again the other force for change, such as the rise and fall of .com जो companies हैं, stocks उनके, then economic recession है, then record low interest rates है। Again ये जो changes हैं, economic shocks हैं, what they are doing is that they are bringing in change in the organization,
चेंज कैसे है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के प्रेशर्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, एंड एज अ रिजल्ट दे आर थिंकिंग कि उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, कंसोलिडेशन करनी है, ले ऑफ्स करने हैं, व्हाट दे हैव टू डू एंड हाउ एंड व्हाई दे हैव टू डू, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू दीज इकोनॉमिक शॉक्स। Then the competition is another force for change. Competitors आपको पता है कि increasingly global हैं, ठीक है। आगे भी जाके आपको इसकी एग्जांपल्स मिलेंगी, और आप ये देखें कि कैसे वो कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग या जिनके स्टेबल जो इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं कंपनीज, हु डू नॉट फेस टर्बुलेंट एनवायरनमेंट, सच एज आप अपनी शुगर वगैरह की इंडस्ट्री को देख लें, कॉटन की इंडस्ट्री को देख लें, या यार्न वगैरह को देख लें, या आप जो दूसरी आपके फुटवेयर वगैरह हैं इनको अगर आप देख लें, तो ये सारी कंपनीज जो हैं इनमें व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि आपका जो स्टेबल एनवायरनमेंट है इनके रिलेटिवली, लेकिन जो कंपनीज जो हैं वो टर्बुलेंट एनवायरनमेंट्स में काम कर रही हैं, इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर देम दैट हाउ दे हैव टू अडेप्ट टू द फोर्सेस फॉर चेंज, और हाउ दीज आर एक्चुअली द फोर्सेस फॉर चेंज फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज जो प्रेशर जब ऑर्गेनाइजेशंस पे बढ़ रहा है तो वो उनके ऊपर प्रेशर ये भी बढ़ रहा है कि उन्होंने एट लो कॉस्ट प्रोड्यूस करना है। तो जब एट लो कॉस्ट उन्होंने प्रोड्यूस करना है, व्हेन दे हैव दिस प्रेशर दैट दे हैव टू प्रोड्यूस एट लो कॉस्ट, तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी कि वो कंपनीज जो हैं वो अब एज अ रिजल्ट वो ग्लोबली दूसरे एट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी वो प्रोडक्शंस दे रही हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे उनको चीप लेबर अवेलेबल है, सच एज चाइना एंड इंडिया एक्सेट्रा, तो उसके क्या कंपेटिटर्स के लिए इम्प्लीकेशंस हैं कि कंपेटिटर्स के लिए अगेन चैलेंज आ गया कि जब एक कंपनी जो है वो एक लो कॉस्ट को रीप कर रही है, लो कॉस्ट के ऊपर ऑफर कर रही है प्रोडक्ट को, तो आपने एज द कंपेटिटर हाउ यू हैव टू कम्पीट विद दैट अदर कंपनी, बिकॉज अगर आप उसे कम्पीट नहीं करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो आप यू लूज योर कस्टमर्स एंड योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरह मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं, एंड ई कॉमर्स ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा जैसे बढ़ता जा रहा है ई कॉमर्स का रोल, दैट इज ऑन अ स्टडी, जैसे डेल टोटली ई कॉमर्स के थ्रू अपनी सेलिंग शेलिंग सब कुछ कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोई इन्होंने नहीं है, दे आर डायरेक्टली थ्रू ई कॉमर्स दे आर रीचिंग द कस्टमर्स। Then the social trends they have changed, such as there are internet chat rooms, the retirement of baby boomers, and the rise in document and big box retailers. Then the world politics that has again changed, so हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, but you know आपको पता है, आप फेमिलियर हैं कि वॉर ऑन टेररिज्म जो 9/11 थी उसके बाद के क्या इंसिडेंट्स हैं, हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड द फोर्सेस फॉर चेंज, हाउ इट हैज़ बिकम अ फोर्स फॉर चेंज। देन द ओपनिंग ऑफ मार्केट्स इन चाइना, इसको हमने पार्टली पहले भी डिस्कस किया, तो इट्स जस्ट द सेम कि वहाँ पे कैसे वो लो कॉस्ट को बेनिफिट लेने के लिए ओपनिंग कर रहे हैं मार्केट्स की। अच्छा, इसके बाद अब आप ये देखें कि जो चेंज है इट कैन बी बोथ प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो चेंज जो है इट बेसिकली मेक्स थिंग्स डिफरेंट। एक चीज तो ये हो गई कि ऑफ कोर्स द थिंग्स आर नॉट द सेम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज, इट मीन्स के जो चीज पहले थी अब वैसे नहीं है, या वो अब वैसे नहीं होगी, तो या वो आप नहीं, यू डोंट वांट दैट टू बी लाइक दैट एनी मोर, ठीक है। तो जो प्लान चेंज है इट्स बेसिकली एक्टिविटीज दैट आर इंटेंशनल एंड गोल ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये तो प्लान चेंज हो गई। इसी तरह जो अनप्लान चेंज है देयर इज द अदर वे है, वो आप उसको कह लें कि दैट इज बेसिकली द एक्टिविटीज दैट आर नॉट इंटेंशनल, अनइंटेंशनल जो एक्टिविटीज होती हैं और जो गोल ओरिएंटेड नहीं होती, ठीक है, जो ओवर्ट किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज बेसिकली द अनप्लान्ड वो चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो प्लान चेंज है, सबसे पहले हम एजेंट्स पे आने से पहले मैं आपको प्लान चेंज की एग्जांपल बताती हूँ कि आप ये देखें कि एक कंपनी, एक यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपनी जिसमें एम्प्लॉयज़, ये आपके बुक में जो एग्जांपल दी हुई है, लेट्स पिक दैट, कि किसी होटल में जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे तो दे वर लाइक दैट वी आर रियली टायर्ड ऑफ वर्किंग फ्रॉम 7 in the morning till 4 in the evening, ठीक है। तो वी नीड टू चेंज, वी हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द लाइफ इज चेंजिंग वेरी फास्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ मोबिलिटी है, कम्युनिकेशन प्रेशर्स हैं और एजेंडाज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो देयरफॉर वी नीड टू जो 7 to 4 वाला काम है, वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज हैं, तो हम देयरफॉर वी कैन नॉट रियली manage that 7 to 4 वाली जॉब्स, वी नीड फ्लेक्सिबिलिटी।
ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्स आवर्स जो हैं ये हम ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करके बता चुकी हूँ कि कैसे जो फ्लेक्स आवर्स हैं दैट इज़ अ वे टू मोटिवेट एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ ने कंप्लेंट की वो एग्जैक्टली आप देखें क्या कंप्लेंट है। वो यही है कि एम्प्लॉइज़ ने कहा कि जी हम 7 to 4 काम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि फिर अब ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या चॉइस है। व्हेन ऑल द एम्प्लॉइज़ दे गेट टुगेदर, दे गॉट टुगेदर एंड दे सेड दैट they cannot work from 7 to 4 but they need for their family life issues and other issues they need some flexibility in their work hours। अब उन्होंने एक किस्म की कोलिशन बना ली एंड एज अ रिजल्ट वो क्या हुआ कि वो मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर आ गया। तो अब मैनेजमेंट ने कोई चेंज प्लान नहीं की हुई थी बट सडनली वेरी नेक्स्ट डे मैनेजमेंट ने क्या किया कि मैनेजमेंट ने उनको फ्लेक्सिबल टाइम ऑफर कर दिए या फ्लेक्स टाइम ऑफर कर दिए। ठीक है। तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है फ्लेक्स टाइम, ये उन एम्प्लॉइज़ की जो इन्होंने कोलिशन बनाई और उन्होंने जो डिमांड्स रेज की उनका रिजल्ट थी ये चेंज, जो कि एक अनप्लान चेंज थी, यानी मैनेजमेंट ने ये ऑलरेडी प्लान नहीं की हुई थी। इट वॉज अ सडन एंड ओवर्ट एंड इमीडिएट चेंज। ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्लान तो नहीं थी। अच्छा, अब ये तो है एक प्लान चेंज की एग्जाम्पल। अब लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक कि अगर एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि वो दे डिसाइड कि वो अपनी जो कंपनी है उसकी ओवरहॉलिंग करेंगे और दे ब्रिंग फोकस ऑन द बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, दे विल ब्रिंग फोकस एंड एज अ रिजल्ट व्हाट दे डू इज दैट वो दे स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन द कंपनीज की आउटलुक के ऊपर और उसको रीबॉन्ड करने के लिए किस्म का दे स्पेंड अ लॉट। ठीक है। उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हैवी किस्म की। अच्छा, अब सो दैट जो क्वालिटी चेक्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन किया जाए और ऐसा कंप्यूटर या ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए फॉर द क्वालिटी कंट्रोल जो कि वो जो टेक्नोलॉजी जो है वो बेनिफिट करे जो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए ऑर्गेनाइजेशन को और जिससे बेनिफिट हो सके ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये बेसिकली क्या है, एक अनप्लैंड दिस इज अ प्लान चेंज। तो प्रीवियस जो थी वो तो एक अनप्लैंड चेंज थी ना, तो मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सेज के नतीजे में एज अ रिजल्ट दैट वाज अ सडन चेंज। तो वो एक अनप्लैंड चेंज थी, यानी मैनेजमेंट ने इसको ऑलरेडी प्लान नहीं किया हुआ था, वो उसके एजेंडा में शामिल नहीं थी। ये जो मैंने आपको दूसरी एग्जांपल बताई है, ऑन द अदर हैंड ये क्या है कि ये एक एजेंडा आइटम बताई है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी मैनेजमेंट की, कि वो क्या करेंगे कि उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की कि वो एज अ रिजल्ट ऐसी चेंज एक्सपेक्ट करते हैं या करेंगे जो कि बेनिफिशियल होगी उन मैनेजमेंट के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। ठीक है। तो ये क्या थी? ये एक प्लान चेंज थी। तो इस तरह से हमने दो तरह की चेंज देखी कि जो प्लान चेंज है वो तो गोल ओरिएंटेड है, दैट यू हैव सम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड दैट यू वांट टू डू दिस, यू आर गोइंग टू डू दिस, तो यू विल अचीव दिस गोल। ठीक है। तो ये गोल ओरिएंटेड होती है जो प्लान चेंज है। अच्छा, चेंज एजेंट्स जो हैं, हाउ द चेंज कम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, हु आर द चेंज एजेंट्स? ऑफ कोर्स द चेंज is coming in the organization through the change agents. ठीक है। तो so change agents are the people who are bringing change in the organization, but who are the change agents? उनके नाम मतलब आप can you name a few change agents? देखें, the change agents of course they could be anyone. ठीक है। आपके जो मैनेजर्स हैं वो भी हो सकते हैं, नॉन मैनेजर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, फ्रेश एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, ओल्डर एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज या कोई नया प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड सो ऑन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है। तो ये कंसल्टेंट्स भी दे कैन ऑल्सो बी द चेंज एजेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए चेंज एजेंट्स, दे आर द पीपल हु कैन act as catalysts and assume the responsibility for managing change activities. ठीक है। तो goals क्या हैं plan change के? It is basically improving the ability of the organization to adapt to changes in its environment और दूसरा changing the behavior of the individuals and groups in the organization। तो ये आप देखें कि दो goals हैं plan change के, which should be kept in your mind। ठीक है। एक तो पहला तो ये है कि आप क्या करेंगे, दो गोल सेट होने जरूरी हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लान चेंज। तो किस तरह की चेंज आप लाना चाहते हैं? एक तो ये है कि आप ये चाहते हैं कि आप जो लॉन्ग टर्म प्रेशर्स हैं वो मीट कर सकें, लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी प्रेशर्स को मीट कर सकें, या आप ये चाहते हैं कि आप जो टेक्नोलॉजी है उसको यू कंटिन्यूसली कीप अडेप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो दैट यू आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है। तो आप यानी कि आप इन्वायरमेंट में अगर कोई गवर्नमेंट ने रूल्स लगा दिए हैं, लॉज लगा दिए हैं नए,
ठीक है, तो वो क्या है, वो भी अगेन हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दोज लॉज एंड रूल्स। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल आ प्लान चेंज, कि आप कैसे अपने आप को अडेप्ट करेंगे टू द एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, ये चेंजेस हैं, जो चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, हाउ यू हैव टू कम अप विद दोज। और दूसरा क्या है कि आप बिहेवियर को अलाइन करना है। सो द अदर एलिमेंट इज द अलाइनमेंट ऑफ द बिहेवियर। तो अलाइनमेंट में बिहेवियर में क्या आ गया कि ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी इस चीज़ को कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉय बिहेवियर जो है वो प्राइम एक ऑब्जेक्टिव है, प्राइम कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। वाई? बिकॉज इट बेसिकली इज लिंक्ड अप विद आ नंबर ऑफ बिहेवियर्स एंड आउटकम्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दो चीज़ें हैं कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं, दे आर ऑल ओइंग टू द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर डिज़ायर्ड डायरेक्शन में होगा तो फिर ही वो सारी चेंजेस सक्सेसफुल होंगी और वो इम्प्लीमेंट हो सकेंगी। अगर एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा, अगर एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर जो है वो रेक्टिफाई नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, तो फिर ये जो चेंजेस हैं ये भी पॉसिबल नहीं होंगी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर या वैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप स्ट्रक्चरली या जिस तरह भी वॉट एवर चेंजेस यू ब्रिंग इन, ठीक है, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एक्चुअली दोज चेंजिंग, उनको सस्टेन नहीं कर सकेंगे अनलेस एंड अनटिल एम्प्लॉय की कमिटमेंट और एम्प्लॉय का बिहेवियर जो है वो अलाइंड हो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस के साथ। अच्छा, जब हम चेंज की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर कम्स रेजिस्टेंस आल्सो। सो रेजिस्टेंस टू चेंज भी वहाँ पर आ जाती है जब हम चेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो देयर आर, यहाँ पर अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम डिफरेंट फॉर्म्स देखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस टू चेंज की। ठीक है, जब whenever the organization will be planning some change, ठीक है, जब किसी ने प्लान किया, ऑर्गेनाइजेशन ने उस चेंज को इम्प्लीमेंट किया, जैसे मैंने आपको मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल की दी, तो इस केस में जब उस मैन्युफैक्चरर ने इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैवी करके ठीक है और एक क्वालिटी कंट्रोल का प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी क्वालिटी को जो है वो करेक्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, प्रमोट करने की अटेम्प्ट की जाएगी। तो इसमें अब क्या है कि आप ये देखें कि इस तरह की जब हम उसकी चेंजेस की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के रिएक्शंस हो सकते हैं। दे कैन बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। वन इज द ओवर्ट एंड इमीडिएट रिएक्शन हो सकता है, दूसरा क्या है, इम्प्लिसिट एंड डेफर्ड रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, जो ओवर्ट एंड इमीडिएट रिएक्शन है उसमें क्या है, इट्स बेसिकली वॉइसिंग द कंप्लेंट्स, engaging in job actions such as slow down operations and striking etc. ठीक है, तो ये तो एक तो ये हो गया, मतलब जैसे वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये कहा कि जी हम ऑटोमोबाइल का हम एक लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस, ठीक है, एंड सो दैट अब ये क्या है कि अब वो एम्प्लॉयज़ जो कि उस टेक्नोलॉजी से या उससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, सो दे माइट बी रेजिस्टेंट टू दैट चेंज। ठीक है, जिनके लिए हु आर आउटडेटेड हैं जो, या जिनके लिए इस टेक्नोलॉजी को लर्न करना, यूज़ करना इट माइट बी डिफिकल्ट, हु हैव एटलीस्ट दैट फियर दैट इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर देम कि वो उस तरह से परफॉर्म कर पाएँ आफ्टर adoption of the new technology। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ फियर्स हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के माइंड में जिसके रिजल्ट में वो, या और दूसरे नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस ऑफ चेंज को लीड करते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। तो देखें, जब रेजिस्टेंस टू चेंज क्या है, बेसिकली ये है कि आपके दो तरीके हैं चेंज, जब अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं, यू डोंट वांट दैट चेंज टू अकर। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि आप उनको, आपकी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है दैट हाउ यू रिएक्ट। Some people what they do is that they start shouting, they start entering into violent behaviors में एंटर होना शुरू कर देती हैं, स्ट्राइक्स में चली जाती हैं, ठीक है, और इलीगल स्ट्राइक्स में चली जाती हैं। इसी तरह ही वो इस तरह के जॉब एक्शंस में चली जाती हैं जो कि जैसे एब्सेंटीज़म टाइप, लो प्रोडक्टिविटी हो गई, क्लोज डाउन ऑपरेशंस हो गए, स्लो प्रोडक्शन रन्स कर दिए, ठीक है, और तो इस तरह की बेसिकली देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज वॉइसिंग कंप्लेंट्स। तो इस तरह से काफ़ी सारे कि आप रेज योर वॉइस, ठीक है, एक वन वे और अदर फिजिकली, वर्बली, ठीक है, आपने नॉन वर्बली, थ्रू एनी वे आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं दूसरी पार्टी को या अपने एम्प्लॉयर को कि जी दिस चेंज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू यू एंड यू आर रेजिस्टेंट टू दैट चेंज। एक तरीका तो ये है। दूसरी ये कि कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि व्हेन देयर सम चेंज हैज़ कम, तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते, दे आर नॉट दैट ओवर्ट, दे आर नॉट इमीडिएट, बट ऑन द अदर हैंड दे आर इम्प्लिसिट एंड डेफर्ड।
ठीक है। तो ये क्या है, सो बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चेंज विच दे डोंट लाइक, व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल उनकी जो लॉयल्टी मोटिवेशन वगैरह कम हो जाएगी, एरर्स जो हैं उनके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, एब्सेंटीज़म जो है वो बढ़ जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस टू चेंज है वो। इस तरह से भी कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो शो करते हैं कि बाय फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या करेंगे कि वो अपनी विदड्रॉ कर लेंगे, एंड बट इसका नुकसान क्या है इम्प्लिसिट एंड डिफर्ड रेजिस्टेंस टू चेंज का। देखें, अगर तो रेजिस्टेंस टू चेंज अब ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इंटरवेंशन लाई, कोई प्लान किया, कोई नई टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी वट एवर इट ब्रिंग्स इन, अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अगर तो ओवर्ट एंड इमीडिएट हैं, जैसे कुछ स्ट्राइक पे चले गए, नॉन वायलेंट हो गए, एग्रेसिव हो गए, ठीक है, या रेज की, उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स रेज की, अपने कंसर्न्स रेज किए, तो बट दे आर ऑल दैट इज़ अ गुड वे टू डू इट, बिकॉज उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर को आपका जो रिएक्शन है वो एक रिच सोर्स आ गया ना, जो है वो इनकोडिंग डी कोडिंग होगी मैसेज की प्रॉपरली, इनकोडिंग डी कोडिंग रिच सोर्स कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें हम आगे जाके जो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। तो इसमें क्या है कि फिर रिच कम्युनिकेशन हो गई, वाई बिकॉज अब आपको फीडबैक भी एक किस्म का मिल गया एट द सेम टाइम इस केस में। लेकिन जो दूसरा केस है इम्प्लिसिट वाला, उसमें फीडबैक की कोई ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ फीडबैक, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है कि आप अपनी इम्प्लिसिट रख रहे हैं, यू कीपिंग योर रिएक्शंस टू योरसेल्फ, ठीक है, ऑन हाउ यू आर बिहेवियर, ऑन हाउ यू आर रिएक्टिंग टू दैट चेंज, यू आर कीपिंग इट टू योरसेल्फ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये हो रहा है कि आपका जो एम्प्लॉयर है या ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं पता चलता, और आप क्योंकि इम्प्लीमेंट आपने करनी है, अगर आपकी कमिटमेंट ही उसके साथ रिड्यूस हो गई, लो हो गई, खत्म हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ऑफ कोर्स होल हार्टेडली आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन उससे सफ़र करेगी। एंड इन सम ऑफ द केसेस इट कुड ऑल्सो हैपन कि ऑर्गेनाइजेशन को, या इट माइट बी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि कौन सा जो एलिमेंट था, कौन सी इंटरवेंशन थी, उसने किस बिहेवियर को या किस रिएक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो क्या रेजिस्टेंस जो है वो अगेंस्ट व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज अगर आप चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि फिर ये इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये रिएक्शंस जो हैं ये शो कर सकते हैं, इमीडिएट भी और इम्प्लिसिट एंड डिफर्ड भी। अच्छा, सोर्सेज मैंने आपको कहा था कि फिर हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले तो हैबिट को आप देख लें कि इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उसमें हैबिट्स आ जाती हैं, हमारी बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज का। अक्सर देखें आपकी हमारी हैबिट बनी होती है, आपने अपने ऑफिस जाना है, जाके आपने दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर डे, आपने अपना काम कहाँ से शुरू करना है, आपने कोई मतलब प्रीवियस डे का फॉर एग्जांपल बैच निकालना है, प्रोडक्शन रन वगैरह जो भी हुआ हो, जो बैच है या वाउचर्स हैं, ठीक है, आपने वो निकालने हैं। आपने फिर उनको जो एक ट्रेडिशनल वे में उनको आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर ऑन किया, उसके साथ आपने उनको टैली किया, ठीक है, देन यू हैव टू साइन देम ऑल, यू हैव टू गेट देम फोटोकॉपीड, यू हैव टू पेस्ट देम इन द फाइल्स एंड सो ऑन, ठीक है। एक मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर इस तरह से हम कहें कि जी इस तरह आप आगे करते हैं, तो ये आपकी हैबिट बन गई हुई है। दिस इज द प्रोग्राम्ड, योर माइंड इज प्रोग्राम्ड बेसिकली टू बिहेव इन दोज वेज। आपने ऑलरेडी आप आते हैं, आके आप उन्हीं स्पेसिफिक वेज में काम करना शुरू करते हैं। इवन देखें प्रोग्रामिंग इतनी इस हद तक हो जाती है जब हमारी रूटीन्स बन जाती हैं, हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, दैट व्हेन यू आर कमिंग टू योर ऑफिस, तो आपने ऑफिस आके ऑफिस को खोला, पहले आपने क्या किया, पहले आपने first you saw the new files, या आपने जो अपनी पहले वाली फाइल्स हैं उनको देखा, ठीक है, या आपने आप मतलब एक पैटर्न आपने सेट किया हुआ है ना अपनी एक्टिविटीज का, अपनी रूटीन आपने सेट की हुई है। तो जो रूटीन वो पैटर्न है वो आपकी हैबिट्स बनाए, वो आपका प्रोग्राम हो चुका हुआ है आपके माइंड में, ठीक है। तो अब जब आप चेंज करने की बात करेंगे, जैसे अगर आप ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लेंगे, मैनुअल सिस्टम को खत्म कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि इट विल बी अ चेंज फॉर यू। आपका जो सिस्टम है, आपकी जो रूटीन है, आपकी जो हैबिट्स बनी हुई हैं, इट विल बी अ चैलेंज फॉर देम, ये उनको चेंज कर देगा और आपको वही रेजिस्टेंस लगेगी, क्योंकि आपको तो एक एफिशिएंट और फास्ट वे लगता है, या आपने अपने पैटर्न सेट किया हुआ है दैट दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द होल डे।
ऑफ कोर्स अगेन ये आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये भी आपकी डिपेंड करता है कि ऑफ कोर्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. सम इंडिविजुअल्स जो हैं उनको ज़्यादा रूटीन ज़्यादा उनको पसंद होती है, उनकी जो हैबिट्स डेवलप हो गई हैं, मतलब बिकॉज ऑफ द रूटीन, बेसिकली तो रूटीन ही है ना. और कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या है, दे डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ रूटीन, दे वांट चेंज एवरी डे एवरी अदर डे. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी एज वेल. कुछ सम पीपल आर मोर अग्रेसिव एंड सम आर नॉट दैट अग्रेसिव, दे आर मोर काम एंड दे आर मोर पीसफुल. एंड एज अ रिजल्ट वो क्या है कि वो उतनी शायद चेंज रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होंगे. लेकिन द पीपल हु आर यू नो मोर जो ओपन हैं टू एक्सपीरियंस एंड हु आर मोर नॉन रूटीन लाइक, जो एक्टिविटीज़ को या चैलेंज को पसंद करते हैं, वो शायद चेंज को भी ज़्यादा वेलकम करें और दे माइट बी लेस रेजिस्टेंट टू चेंज. ठीक है, ऑल्दो इट्स नॉट गिवन इन योर बुक. आई एम नॉट श्योर कि इसकी कोई आपको आई थिंक कि थ्योरेटिकली और लॉजिकली स्पीकिंग देयर शुड बी सम theory about it, और या somehow there will be some literature about it, but it's not in your book. मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ. अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि सिक्योरिटी जो है वो that is another factor that is influencing the individual's resistance to change. कोर्स जब आप एक तरह का इन्वायरमेंट के साथ, एक तरह के काम के साथ, एक तरह के नेचर वर्क के साथ यू बिकम मोर सिक्योर, तो वो जो आपकी जब चेंज आती है तो दैट बिकम्स आपको एक अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए दैट फील्स अ थ्रेट टू यू. ठीक है, दैट इज़ वाई यू टेंड टू रेजिस्ट चेंज. उसके बाद क्या है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपकी रेजिस्टेंस टू चेंज को. ठीक है, कि बिकॉज यू सी कि आपने ऑलरेडी, जैसे हमने डिस्कस किया कि यू आर ऑन सम ट्रैक ऑलरेडी. ठीक है, आप काम कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या डिजायर्ड वे में आप काम कर रहे हैं. ठीक है, आपको यू आर गेटिंग योर आउटकम्स फॉर दैट एज वेल. आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस जा रही है, आपका बॉस आपके साथ हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. you're enjoying your ins and outs. सडनली चेंज आ गई ऑर्गेनाइजेशन में और वो बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज आई, या वो आप कह लें कि बड़ी टेक्नोलॉजिकल चेंज आई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कोई नया सॉफ्टवेयर है. आपका क्या होगा, आपको यू विल सडनली फील इनसिक्योर. वाई? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स. क्योंकि देखिए अभी आप ये समझते हैं कि आप यू आर परफॉर्मिंग एवरेज एंड यू आर गेटिंग द आपने अपनी जॉब जो है उसको एक्वायर किया हुआ है, उसको मेंटेन किया हुआ है, एंड यू आर एम्प्लॉयबल इनफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. ठीक है, बट इट्स पॉसिबल आपको ये फियर आ जाए, यानी कि आपकी सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी अगेन आप इसको कह सकते हैं, या ये फियर आ जाए कि मे बी आप जो है वो शायद पता नहीं इस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएंगे ना. स्पेशली जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका परफॉर्मेंस एवेल्युएशन सिस्टम्स हैं, दे आर लिंक्ड टू द पे सिस्टम्स जो हैं, अप्रेजल सिस्टम्स हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड हैं या प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक्ड हैं, तो वहाँ पर तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. क्योंकि एम्प्लॉयज जो हैं वो फॉरन इनसिक्योर हो जाएंगे दैट मे बी विद दिस चेंज दे मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म द सेम वे दैट दे वर परफॉर्मिंग बिफोर, एंड इट माइट बी अ थ्रेट फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर जो उनकी सैलरीज हैं या उनके इंक्रीमेंट्स और वट एवर, उनसे इट माइट बी लिंक्ड टू दैट. तो ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इस तरह के, ये भी दे कैन ऑल्सो बी एन इम्पेडिमेंट टू चेंज. देन फियर ऑफ अननोन. समटाइम्स यू डोंट नो बट यू आर व्हेन चेंज इज कमिंग. ठीक है, आपको नहीं पता कि व्हाट मे बी आप उस टेक्नोलॉजी है, यू हैव हाई सेल्फ एफिकेसी कि आप उस टेक्नोलॉजी को लर्न कर लेंगे, या वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, या यू माइट ऑलरेडी बी फेमिलियर विद दैट, आपको यू डोंट हैव इश्यूज विद दैट. ठीक है, आपको उस, लेकिन बट यू हैव द फियर ऑफ अननोन. So sometimes it is possible कि आपको you are you must be familiar with this fear of unknown, कि हम without knowing any reason we are afraid. आप जैसे कहते हैं ना कि डरा हुआ तो डरे हुए. ठीक है, तो आप you are just afraid of change. ठीक है, you don't know what, how, what, you're feeling anxious. तो ये anxiety की feeling है, your fear from the change and the feelings of anxiety are there. कि because वो जो fear है या feelings of anxiety that how and what and will it be possible. ठीक है, तो वो जो fear है, although it might actually be, it might be possible very well, but आपका जो fear of unknown है that may not let you move forward. Selective information processing, sometimes that can also be a hurdle to the resistance to change. ठीक है, because हम literature report करता है कि हम increasingly वो information जो है उसको process करते हैं जो कि what we want to hear, and we don't process that information, we don't tend to process that information that we don't intend to hear. तो that is interesting. तो इसलिए as a result क्या होगा कि हम कोई change है या organization में कोई change आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम information ही selectively process कर रहे हैं. हम if you don't like that change, maybe we won't process that change. So as a result that will be again another hurdle to the change process में. अच्छा, इसके बाद ये तो हमने इंडिविजुअल फैक्टर्स देखे. इसके बाद ऑफ कोर्स देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स एज वेल दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू चेंज.
अच्छा, इनमें आप देखें कि पहले आ गया आपका स्ट्रक्चरल इनर्शिया। तो जो स्ट्रक्चरल इनर्शिया है दैट इज बेसिकली कि हर ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेज हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, कल्चर उसका डेवलप हुआ है, वेज ऑफ डूइंग थिंग्स हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम्स एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस, ठीक है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो दिस इज बेसिकली व्हाट के जब आप चेंज लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें रूटीनाइज्ड हैं और पुरानी हैं, उतना ही वहाँ पर आपको चेंज लाना भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, स्पेशली रेडिकल चेंज। तो इसको इंक्रीमेंटल और रेडिकल चेंज को भी हमें आगे जाके थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करती हूँ। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि जब ऑर्गेनाइजेशन के इस तरह के जो पैटर्न्स फिक्स हुए होते हैं, सेट हुए होते हैं, तो एज अ रिजल्ट उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके लिए एक स्ट्रक्चरल इनर्शिया क्रिएट हो जाता है, यानी कि नो टू एंड फ्रो मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट जो है वो उसमें फिर अलाउ नहीं करता, सिस्टम अलाउ नहीं करता, स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रक्चर इज कमिंग बिकॉज ऑफ द इनर्शिया स्टेट दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज इन. Then limited focus of change, sometimes the focus of change is very limited, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका एक पूरी प्रॉपर जो है वो पैकेज में आप नहीं देख रहे होते, ठीक है। तो आप या फिर ये भी आप देखें कि जो है वो समटाइम्स आपको एक देखें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या है, दे आर लिंक्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनमें लिंकेजेस होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है, ठीक है। समटाइम्स फिर ये होता है कि आपका एक यूनिट है या एक डिपार्टमेंट है, उसमें अगर आप चेंज ला रहे हैं और सम चेंज इज कमिंग इन देयर, तो इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है डिपार्टमेंट्स में कि ओवरऑल जो है वो आपका ये वाली जो चेंज है, जो बाकी डिपार्टमेंट्स का इनर्शिया है या उसमें जो स्टैटिक आपकी है उसको इट माइट नलिफाई दैट, ठीक है। तो ये वाला जो एक डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा, जब डिपार्टमेंट्स हो या इंटर डिपार्टमेंट हो या कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो, तो उसमें क्या है कि वो उसको नलिफाई कर सकता है। तो इसलिए ये जो लिमिटेड फोकस है चेंज का, दैट कैन ऑल्सो बी एन इम्पेडिमेंट टू चेंज, क्योंकि अगर फोकस एक मैंने जैसे बताया कि एक स्पेसिफिक उस तक है, तो वो तो फिर इम्पेडिमेंट होगा। उसके बाद आप देखें कि ग्रुप इनर्शिया, जस्ट एज द स्ट्रक्चरल इनर्शिया, इसी तरह ग्रुप इनर्शिया भी होता है कि एक इंडिविजुअल जो है, द इंडिविजुअल माइट बी ready to accept the change, he may not be resistant to change, but overall जो group है वो that might be more resistance to change, और वो inertia वैसे ही दे जैसे कि एक organization जो है वो inertia provide करती है। Then there is the threat to expertise. तो sometimes ये होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि one of the power जो sources हैं that is the expertise of the employees, कि expert power आपके पास कितनी है, ठीक है। तो sometimes organizations में कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर हाई एक्सपर्टीज, ठीक है, उनके पास बहुत नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, ग्रिप है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर उनको पता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो what happens is that they are resistant to change. Why? Because अगर ऑर्गेनाइजेशन इज चेंजिंग फॉर गुड, ठीक है, इट्स ब्रिंगिंग इन कोई नई टेक्निक या टेक्नोलॉजी और समथिंग लेके आ रही है, और वो एम्प्लॉयज़ जो पहले एक्सपर्ट थे अब क्या है कि अब वो दे वोंट बी एक्सपर्ट्स एनी मोर, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मशीनरी और वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रिंगिंग, जो भी नई चेंज आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या है कि वो फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चेंज आपका जो वो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्सपर्टीज खत्म हो जाएगी। तो ये तो थ्रेट हो गया उनके लिए, उनकी एक्सपर्टीज के लिए, क्योंकि शायद उनका सर्वाइवल इस ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए कि वो स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की वजह से हो, ठीक है। अदरवाइज इतने सालों में शायद ऑर्गेनाइजेशंस बहुत चेंज हो गई हैं, उनमें प्रेशर, स्किल्स, रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड अ लॉट, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या है कि थ्रेट टू एक्सपर्टीज है, दैट इज अनदर फैक्टर दैट ब्रिंग्स रेजिस्टेंस टू चेंज. Then we have another factor which brings resistance to change, that is the threat to established power relationships. ठीक है, तो जो आपके established power relationships हैं वो भी they also bring in an influence on the resistance, organizational resistance to change. Why? Because of course आप देखें कि जो power relationships हैं वो तो बड़ा they are enjoying their अपनी power positions को in the organization, ठीक है, वो अपनी power की base के ऊपर organizations में benefits भी ले रहे हैं, they have a number of उनकी से भी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी डिसीजन मेकिंग में, एंड दे हैव बेसिकली इंजॉय करते हैं अपनी पावर को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो पावर है, अगर चेंज इस तरह की आ रही है कि वो इनकी जो पावर रिलेशनशिप्स हैं या जो पावर है उनकी, उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है, सो दैट दे डोंट रिमेन एज पावरफुल एज अ रिजल्ट ऑफ
द चेंज दैट इज एक्सपेक्टेड और दैट इज कमिंग, तो फिर वो दे विल बी वेरी बिग रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो कि उनकी पावर जो है वो शॉर्टन हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ विच, ठीक है, या मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप रिस्ट्रक्चरिंग कर दें या आप जो है वो चेन ऑफ कमांड को चेंज कर दें, इस तरह की जब कोई चेंज आप लेके आएँ या रिकम्पोज कर दें ग्रुप को और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की जब आप कोई चेंज लेके आएँ तो उसको क्या होगा कि वो जो पावर रिलेशनशिप्स हैं वो उनकी तो पावर, दे वोंट बी सीइंग पावरफुल देमसेल्व्स एज पावरफुल इन द ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर, तो वो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू accommodate to, therefore they will basically resist to this change. Then again similarly there is threat to established resource allocations, ठीक है, वो रिसोर्स एलोकेशंस जो कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट ग्रुप्स में रिसोर्स एलोकेशंस हो चुकी हैं, तो वो क्या है कि वो रिसोर्स एलोकेशंस भी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज उनको वो भी अफेक्ट हो सकती हैं, जो इसलिए भी वो एम्प्लॉयज जो हैं वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रिसोर्स एलोकेशंस। यानी किसी एक ग्रुप को या किसी एक इंडिविजुअल को या कुछ इंडिविजुअल्स को अगर कोई रिसोर्सेज एलोकेट हुए हुए हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज कोई स्ट्रक्चर में या जो भी किसी भी किस्म की कोई चेंज आ गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपको उस तरह के रिसोर्सेज अब रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो यू नो कि आपकी जो रिसोर्स एलोकेशन रूटीन्स हैं अब वो चेंज हो जाएंगी एंड यू वॉन्ट बी हैविंग द सिमिलर एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज एज यू वर बिफोर। तो ये क्या है कि ये अगेन आपका इट विल प्रोवाइड यू, ये वाली जो फीलिंग है ये अंडरस्टैंडिंग है, ये परसेप्शन जो है इट विल लीड टू अ थ्रेट टू द द चेंज प्रोसेस। अच्छा, देयर आर बेसिकली नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं टैक्टिक्स को फॉर डीलिंग विद द रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, तो हमने दो तरह की रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी देख ली है, एक हमने देखा है कि इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं उसके, और दूसरा हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं वो भी रेजिस्टेंस टू चेंज को करते हैं। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि टैक्टिक आप डील कैसे कर सकते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज को। तो देखें, पहला तो ये कि एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। एक तो देखें आप एजुकेट करें एम्प्लॉयज़ को, उनको बताएं, ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और चेंज की क्या इंपॉर्टेंस है, अडेप्टेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इनोवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब गिव देम एक उनको कंप्लीट एक पैकेज बताएं, उनको बताएं कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू नो ये दे आर नॉट जस्ट बैंड वैगन्स, ये जो जिन चेंजेस की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ये जिस चेंज की बात हो रही है, इट इज़ जस्ट यू नो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज एंड इट विल कम बैक टू यू। ठीक है, और ये इनको एजुकेट करना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द चेंज, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेटअप। एंड देन सेकेंडली कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स जो पुअर कम्युनिकेशन होती है, बैड कम्युनिकेशन होती है, इल कम्युनिकेशन होती है, वो क्या करती है दैट लीड्स टू द रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, तो सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इम्प्रूव करें कम्युनिकेशन विद द डिफरेंट जो पार्टीज हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द चेंज। ठीक है, अगर आप उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो देन यू विल बी एबल टू विन देयर कॉन्फिडेंस। जैसे आप ये देखें कि जो जर्मनी है उसका जो स्टेक होल्डर मॉडल है वो क्या करता है कि वो एम्फसाइज करता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे अनलाइक द शेयर होल्डर्स। तो वो क्या है कि वो एक बेसिकली इट बिलीव्स इन डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन एंड इन कीपिंग द राइट्स ऑफ ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स रादर देन ओनली द शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसमें वो फिर जो दूसरे ग्रुप्स हैं, पीपल हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या कस्टमर्स हैं या सप्लायर्स हैं, वो सारे आ जाते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं। तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे प्रॉपरली विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तो क्या होगा कि उसका रिस्पॉन्स है वो दैट विल बी अ डिफरेंट रिस्पॉन्स एंड यू आर नॉट ओनली सिर्फ आप जो हैं वो उनकी बात नहीं कर रहे शेयर होल्डर्स की, बल्कि सबकी बात करें। तो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, अच्छी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक एम्प्लॉयज़ को मैसेज जाए, कम्युनिकेट हो उनको कि ये जो चेंज है इट इज़ अ पैकेज एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट हैज़ पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है, उसके कोई नेगेटिव आउटकम्स नहीं हैं या नहीं होंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि पार्टिसिपेशन जो है फ्रॉम द एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट। तो हम ऑलरेडी पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमने बड़ी डिस्कशन की हुई है। ठीक है, अपना जो मैंने आपको मोटिवेशन का लेक्चर दिया है उसमें भी मैंने आपको पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग की, पार्टिसिपेशन की, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की, ठीक है, इनकी हमने डिस्कस की है और आगे भी हम अपने लेक्चर्स में वक्तन फ़क्तन इनको डिस्कस करेंगे।
तो पार्टिसिपेशन, आपको पता है कि जब पार्टिसिपेशन होगी एम्प्लॉयज़ की तो उसका क्या रिजल्ट निकलना चाहिए? उसका रिजल्ट यही निकलना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो हैं व्हेन दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी चेंज करने जा रहे हैं या कोई स्टेप लेने जा रहे हैं, तो इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, तो वो फिर उसको ज़्यादा पॉजिटिवली लेंगे, ठीक है, उस चेंज को या उसको एक्सपेक्टेशन को जो एम्प्लॉयज़ से हैं, दे विल केटर देम मोर, और वो उसको ज़्यादा ओन करेंगे, उनकी सेंस ऑफ ओनरशिप ज़्यादा होगी, उनकी कमिटमेंट ज़्यादा होगी विद द जॉब, विद द वर्क, विद दैट चेंज, विद द ऑर्गेनाइजेशन। सो कमिटमेंट टू दैट चेंज भी उनकी ज़्यादा होगी अगर उनको पार्टिसिपेशन के साथ, म्यूचुअली उनके साथ एम्प्लॉयज़ के साथ कोलैबोरेटिवली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने चेंज के गोल्स या टारगेट्स जो हैं उनको सेट करे। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई चेंज लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड द चेंजेस मतलब कोई मेजर फॉर एग्जांपल चेंज लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं समटाइम्स वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उस चेंज से फेमिलियराइज करने के लिए और उसको अडॉप्ट करने के लिए, टिल दैट टाइम द एम्प्लॉयज़ दे माइट बी नीडिंग योर फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। सो द पॉलिसीज सच एज आप उनको फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप उनको पेड लीव दे दें, दैट कैन हेल्प। और दूसरी जो इंटरवेंशंस हैं HRM की, जिनके थ्रू ये एम्प्लॉयज़ को फीलिंग हो दैट द ऑर्गेनाइजेशन केयर्स फॉर देम एंड इज सपोर्टिंग देम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद देखें कि आप प्रोसीजरल जो फेयरनेस है, प्रोसीजरल फेयरनेस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वाई, बिकॉज जो भी चेंज प्रोसेस आप कर रहे हैं उसमें हाउ दैट प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, व्हाई दैट चेंज इज अकरिंग। अगर फॉर एग्जांपल आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को चेंज कर रहे हैं, देखिए तो चेंज तो कोई भी हो सकती है ना। अगर आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को फॉर एग्जांपल चेंज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो आपका वो भी व्हाई, हाउ, उसका प्रोसीजर कैसे यूज़ हो रहा है, क्या प्रोसेस है, बिकॉज अदरवाइज वो क्या है कि वो रेजिस्टेंस होगी चेंज में। अगर वो एक फेयर प्रोसेस नहीं होगा तो फिर वो रेजिस्टेंस आएगी चेंज में, ठीक है। तो इस तरह से फिर मैनिपुलेशन एंड कोऑप्शन जो हैं, कोऑप्टेशन जो हैं, ये दूसरी दो ऑप्शंस हैं जो कि ओवरकम करती हैं, हेल्प करती हैं ओवरकम करने में रेजिस्टेंस टू चेंज। मैनिपुलेशन में क्या होता है कि समटाइम्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रॉन्गली यूज़ करती हैं, स्टेटमेंट्स देती हैं या जो चीज़ों को इस तरह से पोर्ट्रे करती हैं विच आर मोर फेवरेबल, उनकी फिल्टरिंग करके या इन अ मोर डिजायर्ड वे व्हेन यू प्रेजेंट द थिंग्स, दैट इज़ बेसिकली मैनिपुलेशन, ठीक है। तो आप इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स, दैट इज़ मैनिपुलेशन। तो चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट करना इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स, सो दैट इज़ मैनिपुलेशन। अच्छा, तो मैनिपुलेशन में क्या होता है कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ को ये कहे कि इफ़ यू विल नॉट मेक दिस मच प्रोडक्शन इन 1 month विल क्लोज द ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ बेसिकली ये मैनिपुलेशन टैक्टिक है कि आप एम्प्लॉय को एक किस्म का ये कह रहे हैं कि अगर आप कि सो यू आर बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए। तो हम ये करते हैं कि हम यहाँ से ही हमारा जो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो सका, बट वी आर एग्जॉस्टेड विद द टाइम लिमिट। तो जो टाइम कंस्ट्रेंट था उसकी वजह से हम वी हैव टू फिनिश दिस स्टॉप यू नो द लेक्चर हियर, एंड आई विल बी continuing right from here with the recap of course of this lecture first, and then I'll continue right from here during my 11th lecture. So I hope you enjoyed today's topic. I wish you all the best and I thank you very much for your patience. Allah Hafiz.